Okay, let's start with the definition of polynomial, right? What is polynomial? Polynomial is basically, just write it down, polynomial is basically an algebraic expression in which power of variables are non-negative integers. Non-negative integers means whole numbers. So for example, if you have expression like x plus 1, this is polynomial. If you have expression like x squared plus 2x minus 5, this is another polynomial. If you have expression like x cubed minus 5x squared plus 3x minus 7, this is another type of polynomial. Why? आप बड़ा clearly observe करो. First example के अंदर you have power of variables either 1 or 0, right? Means in the whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 and so on. Second example देखो, power of variables आपको क्या नजर आ रहा है? Either a 2 or a 1 or a 0. Means whole numbers के अलावा power of variable आपको other than whole number नजर नहीं आएगा. So that means these are the examples of polynomials. Any algebraic, I'm repeating the definition now, this is very important. Any algebraic expression, what is algebraic expression? In which base side is variable, right? What is base? By the way, just try to clear this as well. अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों पे difference क्या है, तो बड़ा clearly आप observe कर सकते हो difference क्या है. In this situation, base side is variable and power side is constant. And in this situation, exactly opposite है आपके पास. Base side is constant and power side is variable. So basically algebraic का difference आप ये रखते हो कि in which base side is variable. सही है? So ये clear रखिएगा. So I'm repeating the definition of polynomial again. Any algebraic expression in which power of variables are in whole numbers, that is 0, 1, 2 and so on. ये examples अगर आप observe करो तो आपके पास basically polynomial की identity is based on its degree. So the second term हमने इसमें introduce करना है, वो आपके पास होगा degree of polynomial, right? Degree की definition आपके पास क्या होता है? Degree is basically the highest power of variable involved in any polynomial is called the degree of the polynomial. और यही identity of the polynomial होगा. For example, अगर मैं आपसे कहूँ in this situation highest power of variable क्या है? आप कहोगे 1, right? So what is the degree? 1. In this situation, highest power of variable is 2, means degree is 2. In this situation, highest power of variable is 3, means degree is 3. So अगर आप देखो common mathematical language में, this is called linear expression. So we can say that in linear expression, degree is always 1. In quadratic, degree is always 2, and in cubical, degree is always 3. Okay, good. So this is all about degree. Just write it down. This is another important term जो आपने throughout polynomial के chapter में, बल्कि आगे भी आपने advanced topics के अंदर भी इस particular term को use करना होगा extensively. So what is degree? Highest power of any variable involved in any polynomial is called the degree of the polynomial. And this degree is basically the identity of the polynomial. Is it clear? Good. Anyways, ये आपने basic terms को discuss किया. What is polynomial? Okay. Now come to the next point, and which is very important, operations on polynomials. देखिए operations और polynomials में तीन ऐसे operations हैं. Mathematical operations obviously, basically चार mathematical operations हैं: addition, subtraction, multiplication and division. तीन ऐसे operations हैं जो आपने basically जब start करते हो algebraic concepts को तो आप वहीं discuss कर लेते हो सारे concepts. नाम से नहीं डिस्कस करते कि पॉलिनोमियल के ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ डिस्कस करते हो. मैं जब आपसे डिस्कस करूँगा तो आप उसे क्लियरली समझ जाओगे. सो ऑपरेशंस कौन से इन्वॉल्व हुए? ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स. वन इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, third is multiplication,
fourth is division. Okay, so addition का अगर आप सेंस देखो, एडिशन का बड़ा सिंपल सा सेंस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम कंडीशन होता है। रूल क्या है? रूल ऑफ अलजेब्रा आपके पास अप्लाई होगा, ग्रामर ऑफ अलजेब्रा आपके पास अप्लाई होगा। मींस लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होके सिंगल टर्म में कन्वर्ज हो जाते हैं और अनलाइक टर्म्स जो हैं वो एज इट इज मेंटेन रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 7, so आप क्या कहोगे? x स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो आप कहोगे it's 2x स्क्वायर, 2x minus x is plus x and minus 5 plus 7 is plus 2. This is the resultant polynomial. Okay. Similarly, addition to भी exactly यही concept apply होगा। अब जो सबसे important concept है उसको आपने observe करना है। These are parent polynomials and this is the resultant polynomial after performing some specific operation, और वो specific operation addition भी हो सकता है, subtraction, दोनों के लिए same rule है। Rule क्या है आपके पास? If you observe कि आपके पास यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पेरेंट पॉलिनोमियल्स हैं वो दोनों सेम है, डिफरेंट भी हो सकती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई मस्ट सिचुएशन नहीं है कि सेम होना चाहिए, डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। पेरेंट पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट डिग्री कंडीशन होगी वही रिजल्टेंट का भी डिग्री बनेगा। इस केस में क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है तो रिजल्टेंट का डिग्री भी 2 था। पेरेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 था, resultant polynomial degree is also 2. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें, मैं अगर आपसे कहूँ x cube plus 3x plus of 5x minus 7, let's suppose, right? x cube, कोई और टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं है, x cube means x cube, 3x plus 5x is 8x minus 7. अब आप ऑब्जर्व करो, इन दोनों पेरेंट पॉलिनोमियल्स में से हाईएस्ट डिग्री कौन सा था? 3। रिजल्टेंट अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका डिग्री भी 3 डिफाइन होगा। सो सिंपल आपके पास सिचुएशन है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स या स्टार्टिंग जब अलजेब्रा का स्टार्ट लेते हो तो वहीं से आपने ये स्टार्ट कर देना होता है कि लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर सिंगल टर्म में कन्वर्ज होती हैं और अनलाइक टर्म्स हैं वो एज इट इज डिफाइन होती हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल है टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पास ये होगा कि पेरेंट पॉलिनोमियल्स में से जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही रिजल्टेंट का डिग्री बनेगा। So this is the important concept. Is it clear how to add or subtract two polynomials? Okay, good. Multiplication ये भी आप लोगों ने जब अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हो तो आप वहाँ डिस्कस करते हो, लेकिन किस कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हो? मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स। लेकिन यहाँ हम टर्म को डिस्कस डिफरेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, बट इट्स द सेम थिंग। इन्हें के बारे में x plus 3 times x minus 5. So आप क्या कहोगे? It's x squared minus 5x plus 3x minus 15. First with the first with the last with the first, last with the last. 3 टर्म्स के साथ भी हो सकता है, वो इशू नहीं है। सब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी आपकी नॉलेज में चीज़ है ये वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये 3 ऑपरेशंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नई हो। फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा का पार्ट है जो आप यहाँ पर नॉर्मली फ्रीक्वेंटली अप्लाई करोगे। सो यहाँ आपने डिफाइन कर दिया योर रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। सो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो तो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या होगा? जो पेरेंट पॉलिनोमियल्स एज फैक्टर्स डिफाइन हो रहे हैं उनमें आपने ऑब्जर्व कर लेना है कि आपके पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनका हाईएस्ट डिग्री क्या है और फिर उनकी एडिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखो तो हाईएस्ट डिग्री 1 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो 1 और 1 ऐड करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका डिग्री जो होगा वो आपके पास 2 डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर होगा लेट्स सपोज, तो आपके पास 2 और यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 है तो 2 + 1 3 कंफर्म होता है आपके पास कि रिजल्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये भी 2 होता तो आप ये कहते हैं कि रिजल्टेंट का डिग्री क्या होना चाहिए? 2 + 2 means 4, तो आपके पास रिजल्टेंट का डिग्री 4 बन जाता। Is it clear? So this is all about multiplication of two polynomials. Hopefully आपको ये clear हुआ होगा कि how to add, subtract और multiply polynomials. Next part के अंदर हमने division जो हमारा basic main topic आपके पास होगा उसको next part के अंदर डिस्कस करेंगे।
Thank you.